آغاز میں موسم کا احوال اپنے ناظرین تک پہنچائیں۔ کراچی میں گرمی اور حبس شہری حال سے بحال ہو گئے ہیں۔ درجہ حرارت 34 ڈگری تک جا پہنچا ہے۔ حکومت سندھ اور ڈی ایم سی ایسٹ کی جانب سے نمائش رنگی پر ہیٹ اسٹروک کیمپ قائم کر دیا گیا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، عادیہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عادیہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، ان دنوں شہر قائد شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ آج بھی سورج جو ہے وہ دن میں آنکھیں دکھا رہا ہے اور پارا بے شک کم ہے، لیکن ہیومیڈیٹی کا فیکٹر زیادہ ہونے کی وجہ سے گرمی کی شدت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ اس وقت بھی درجہ حرارت تقریباً 35 ڈگری سینٹی گریڈ اور شدت 40 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہے، کیونکہ ہیومیڈیٹی 49% ہے۔ کراچی میں مختلف آرگنائزیشنز کی جانب سے جو ہے وہ مختلف مقامات پر ہیٹ اسٹروکس کیمپ جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں۔ جس کیمپ پر اس وقت میں موجود ہوں، یہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جانب سے اور سندھ حکومت کے اشتراک سے یہ کیمپ جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ شہریوں سے بات کریں گے کیونکہ یہاں پر ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ سندھ حکومت کی جانب سے جو لگایا گیا ہے کیمپ، اس میں ٹھنڈا پانی میسر ہے عوام کے لیے، چونکہ محکمہ موسمیات بار بار کہہ رہا ہے کہ سر کے اوپر پانی پھینکیں، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، گرمی بہت۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو سیاسی بھی ٹیمپریچر بہت ہائی ہوا ہے سیاسی پارٹیوں کا۔ اس کے علاوہ سورج جو ہے نا اپنے عروج کے اوپر جو اس کا ٹیمپریچر ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ہیٹ اسٹروک ہونے کا خطرہ ہے۔ تو ڈی ایم سی کی طرف سے یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے ایک انتظام کیا ٹھنڈے پانی کا، کہ تاکہ آپ لوگ اس کو مطلب اگر زیادہ ہیٹ لگتا ہے آپ اس کو سر پہ ڈالیں، ہاتھ دھو لیں، تھوڑا پانی پی لیں تو آپ کو تھوڑا سا ریلیکس مل جائے گا۔ اچھا، آپ بھی یہاں رکے ہیں پانی پینے کے لیے؟ جی، میں پانی پینے کے لیے رکا تھا، میں جا رہا تھا اور یہاں مجھے پیاس لگی تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ بڑا اچھا اقدام کیا ہوا ہے ڈی سی ایسٹ والوں نے، آئی تھنک میرے خیال سے بہت اچھا اقدام ہے۔ بالکل، آپ مناظر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ میں کیمرہ مین فرحان سے کہوں گی، دیکھیے چھوٹے بچے ہوں، خواتین ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، وہ تمام یہاں آ رہے ہیں، پانی کا استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ انہی کے لیے لگایا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے، اور آنے والے دنوں میں بھی ڈیفینیٹلی ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا، اور ایسے مہینوں میں بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیٹ اسٹروک کیمپس کو جو ہے لگے رہنا چاہیے، تاکہ شہری جو ہے، کیونکہ ہر کوئی تو خرید کر نہیں پی سکتا، ٹھنڈا پانی لے۔ شکریہ عادیہ ناز، اپڈیٹ کریں تھی۔ سندھ سرکار کے سندھ فوڈ اتھارٹی، لیاری ترقیاتی اتھارٹی اور سیون ترقیاتی اتھارٹی کی 4 سرکاری گاڑیاں سابقہ افسران کے لیے مال غنیمت بن گئی ہیں۔ تفصیلات جانیں گے، آزاد نوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آزاد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سندھ سرکار کے سندھ فوڈ اتھارٹی، لیاری ترقیاتی اتھارٹی اور سیون ترقیاتی اتھارٹی کی 4 سرکاری گاڑیاں سابقہ افسران کے لیے مال غنیمت بن گئی ہے۔ افسران عہدوں پر نہیں رہے، لیکن گاڑیاں تاحال انہوں نے واپس نہیں کی ہے۔ ان افسران میں سندھ فوڈ اتھارٹی، لیاری ترقیاتی اتھارٹی، سیون ترقیاتی اتھارٹی کی 4 گاڑیاں شامل ہیں۔ ویکو KT 1398 پر سابق ڈی جی لیاری ترقیاتی اتھارٹی زبیر پرویز احمد قابض ہیں، جبکہ الٹو کار GS 0573 پر سابق ڈی جی سیون ترقیاتی اتھارٹی آغا عبدالرحیم قابض ہے، جبکہ فوڈ اتھارٹی کی سرکاری گاڑی کلٹس GSE 912 پر عائشہ جونیجو قابض ہے، جبکہ فوڈ اتھارٹی کی GSE 876 پر میمونہ شاہ قابض ہے۔ ان 4 افسران کو محکمہ SNDD کی جانب سے اور متعلقہ محکموں کی جانب سے شوکاز نوٹس جاری کیے گئے، گاڑیاں واپس کرنے کے احکامات دیے گئے، لیکن ان کے احکامات کو ان افسران نے ہوا میں اڑا دیا، اور تاحال یہ افسران 4 گاڑیوں پر جو ہے قابض ہیں، ان کا قبضہ برقرار ہے۔ یہ گاڑیاں اس وقت افسران عہدوں پر نہیں ہے، لیکن عہدوں پر نہ رہنے کے باوجود گاڑیاں سرکاری استعمال کرنے لگے۔ جی بہت شکریہ آزاد نوریو، اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں PTI کارکنان کی ہنگامہ آرائی کے مقدمات کی سماعت ہوئی۔ PTI رہنما فردوس شمیم نقوی کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے فردوس شمیم نقوی کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ مزید بات کریں گے، ممتاز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ممتاز، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے۔ دیکھیں جی، آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان کی گرفتاری کے خلاف جو شہر میں ہنگامے ہوئے، توڑ پھوڑ، جلاؤ گراؤ ہوا، اس میں مختلف مقدمات جو ہیں اب وہ بنائے گئے تھے، جس میں PTI رہنما فردوس شمیم نقوی کو بھی پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا۔ آج فردوس شمیم نقوی کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں پر تفتیشی افسر نے دوران سماعت عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ فردوس شمیم نے لوگوں کو اشتعال دلوایا اور اکسایا، رہنماؤں کے ایما پر سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، لہذا عدالت نے فردوس شمیم نقوی کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ ملزم کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ یہ درج کیا گیا ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے عدالت سے ریمانڈ کی اصلاح کی گئی تھی، لہذا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جی
बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली। कमर्शियल सार्फिन भी गैस की आंख मचोली से परेशान हो गए हैं। बफर जोन सेक्टर 15A2 में गैस मसाइल से पकवान सेंटरों के लिए खाना बर वक्त तैयार करना मुश्किल हो गया है। मज़ीद बताएंगे बसीम इफ्तिखार। आज बिल्कुल कराची में गैस के मसाइल से जहाँ घरेलू सार्फिन परेशान है, तो वहीं कमर्शियल सार्फिन भी जो है वो मुश्किल से दो चार है। बिलखुसूस पकवान सेंटर्स की बात करें तो गैस के मसाइल की वजह से पकवान सेंटर्स को अब अपनी जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं और जो बुकिंग ऑर्डर्स हैं उनको पूरा करना मुश्किल हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बफर जोन 15A2 में। यहाँ पर गैस की क्या सूरत हाल है ये जानते हैं। ये बताएगा कि जो आपका पकवान सेंटर है यहाँ पर गैस की क्या सूरत हाल है और गैस के कितने मसाइल की वजह से आप लोग परेशान हैं, कब कब गैस की बंदिश होती है, प्रेशर में कमी का सामना होता है? देखिए, गैस जो है ना बहुत बड़ा हमारे लिए मेन पार्ट प्ले करती है इसके अंदर। अब ये है कि गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है तो जाहिर सी बात है हम लोग ऑर्डर्स किस तरह डिस्पैच करेंगे। अच्छा, कोई स्केजुअल है नहीं इन लोगों का, बेटाइम बेवक्त पे गैस चला जाती है कभी कभार, कभी प्रेशर इतना स्लो आता है कि इंसान कुछ बना ही नहीं सकता। अब जाहिर सी बात है अब चीज़ अच्छी बन के जाएगी नहीं तो फिर कस्टमर किस तरह आएंगे। ऊपर से जाहिर सी बात है कस्टमर से अगर हम कमिटमेंट कर लें कि हमें 5 बजे देनी है और 4 बजे तक गैस चलेगी तो हम किस तरह उसको प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर को। उसके अलावा मसला ये है कि रात पे प्रेशर तो जाता ही आता है, गैस पूरी चले जाती है, नाम होता ही नहीं गैस का, नामो निशान ही नहीं होता। ऊपर से है कि जब गैस का प्रेशर लो होता है तो हम जाहिर सी बात है कुछ काम, और बिल पूरे लग के आ रहे हैं भाई, तो इस पर हमें समझ नहीं आ रहा है क्या करें। अच्छा, सर्दियों में समझ में आता था कि नहीं यार गैस की लोड शेडिंग है तो इशू था, कोई मसला नहीं। अब तो गर्मी है, मतलब तो गुंडागर्दी लगा रखी है ना आपने, कोई स्केजुअल नहीं है, बेटाइम गैस चली जाती है, बेटाइम गैस का प्रेशर लो जाता है, बड़ा मुश्किलात का सामना पेश आया है इस तरह से हमें तो। जी बिल्कुल, ये थे इस पकवान सेंटर के मालिक खुबैब, जिनका कहना है कि सूरत हाल ये है कि बे वक्त जो है वो या तो गैस प्रेशर में कमी का सामना होता है या फिर गैस चली जाती है, जिसकी वजह से पकवान के ऑर्डर्स बर वक्त पूरे करना और बर वक्त जो है वो कस्टमर्स को डिलीवर करना इनके लिए इम्तिहान बन जाता है। जबकि इनका कहना है कि गैस के बिल भी जो आ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी एक गैस नहीं आ पा रही। सार्फिन का और बिलखुसूस कमर्शियल सार्फिन का मुतालबा है कि जो इस वक्त गैस का बहरान है उसको हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए। बहुत शुक्रिया बसीम इफ्तिखार अपडेट करने के लिए। कराची की DMC सेंट्रल के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के सर्विस बुक में बड़ा झोल सामने आ गया है। रिटायर्ड मुलाजिम के एम्प्लॉय नंबर पर अपनी नौकरी चढ़ा ली, बाद अज़ां खिलाफ ज़ाब्ता तकर्रियाँ पाने का ना रुकने वाला सिलसिला भी जारी रहा। मज़ीद बात करेंगे जुनैद जावेद से। जुनैद, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला बस्ती के अंदर तैनात गुलाम अली अस्करी इनका नाम है। इनकी सर्विस बुक में एक बड़ा झोल सामने आया है। सर्विस बुक की जो कॉपी है वो सिटी 21 न्यूज़ में जो है वो हासिल कर ली है। इसमें आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि एम्प्लॉयज नंबर जो है 2 मुलाजमीन के जो है वो एक जैसे ही हैं। इनमें जो रिटायर्ड मुलाजिम है कासिम अली, उनका एम्प्लॉय नंबर 009909 है, जबकि गुलाम अली अस्करी जो कि इस वक्त डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका भी यही एम्प्लॉय नंबर जो है वो सामने आ रहा है। साल 2009 के अंदर जो है गुलाम अली अस्करी ने जो है वो अपनी नौकरी हासिल की थी, जबकि उस वक्त जो दूसरे रिटायर मुलाजिम है कासिम अली, वो उस वक्त रिटायर हो चुके थे। हम उन्हीं के एम्प्लॉय नंबर के ऊपर इन्होंने अपनी नौकरी चढ़ाई है। तकरीबन ग्रेड 1 की जो है इनको पहली नौकरी जब मिली थी तो उस वक्त बहैसियत कुली इनको गुलबर्ग जोन में तैनात किया गया था, जबकि साल 2013 के अंदर साबिक म्युनिसिपल कमिश्नर बस्ती जो है उनकी नवाजिशात का सिलसिला जो है वो इनके ऊपर शुरू हुआ था। गुलाम अली अस्करी जो है इनको एक ही दिन के अंदर जो है वो ग्रेड 1 से ग्रेड 17 तक जो है वो नौकरी दी गई है। अगर ऐसा कहा जाए तो वो गलत ना होगा, क्योंकि म्युनिसिपल कमिश्नर की जानिब से एक ही दिन में जो है वो 2 लेटर्स निकाले गए थे। पहले लेटर में 1 से 11 और दूसरे लेटर में जो है 11 से 17 ग्रेड पर जो है वो तरक्की की गई थी। ये जो नवाजिशात का सिलसिला है ये यहीं पर नहीं रुका था, जबकि इसके आगे भी हमने देखा कि सर्विस बुक के अंदर आप देख रहे होंगे कि लेटर है, लेटर के अंदर गुलाम अली अस्करी को जो है ग्रेड 17 से ग्रेड 18 में तकरीबन 7 से 8 माह के बाद ही जो है दोबारा तरक्की दी गई है। यानी ये अगर आप अंदाजा लगाएं तो बहुत ही ज्यादा फुर्ती से जो है इनकी तरक्कियां जो है वो होती रही हैं, जबकि डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो दीगर मुलाजमीन और अफसरान जो है वो अपने रिटायरमेंट के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन वो 1 ग्रेड 2 ग्रेड और 5 ग्रेड से जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कानून के मुताबिक ऐसा होता है कि ग्रेड 1 का जो एम्प्लॉय होता है उसको पहले ग्रेड 1 से ग्रेड 5 में जो है वो तरक्की मिलती है, फिर ग्रेड 7 में मिलती है, फिर ग्रेड 11 में मिलती है, फिर ग्रेड 14 में मिलती है, फिर ग्रेड 16 में मिलती है, फिर ग्रेड 17 में और फिर ग्रेड 18 में जाकर जो है वो मुलाजिम पहुंचते पहुंचते जो है वो रिटायर हो जाता है। लेकिन इनकी सर्विस बुक में तकरीबन 2009 की जो इनकी सर्विस है, इस सर्विस से लेकर आज तक का जो इनका रिकॉर्ड है उसमें एक बड़ा झोल जो है वो सामने देखने में आ रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि जिला बस्ती की इंतजामिया जो है वो इस मामले के ऊपर क्या करती है। म्युनिसिपल कमिश्नर, ठीक है, क्या कार्रवाई होगी ये बाद में देखा जाएगा। जुनैद जावेद, बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं। सनतकारों ने मौजूदा सूरत हाल को मुल्क की मईशत के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। कोरंगी एसोसिएशन ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर सलीमुज़्ज़मान ने कहा है कि 10 माह के अदाद शुमार ख़तरनाक आए हैं। मौजूदा हालात की वजह से रुपया मज़ीद कमज़ोर हो सकता है। बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ। माशी अदद शुमार का जायज़ा लिया जाए तो 10 माह में ख़राब माशी अदद शुमार सामने आए हैं, उसका मईशत पे कितने असरात हो रहे हैं जानते हैं। कोरंगी एसोसिएशन के जो साबिक सदर हैं यहाँ पे सलीमुज़्ज़मान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कंसर्न देख रहे हैं? जो पहले आप कहते रहे हैं तो मईशत का डाटा अभी भी अच्छा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अशरफ जी। अब जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा रिलीज़ हुआ है उसके हिसाब से भी आपने देख लिया कि जो बातें हम इतने अरसे से करते आ रहे थे वो इस वक्त सच साबित हो रही हैं। आप ये देखिए कि ओवरऑल जो आपकी इकनॉमिक पोजीशन सामने आई है वो इंतहाई ख़तरनाक है। आपकी एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुई हैं, आपकी जो इंपोर्ट्स हैं, अगर आप कहते हैं कि हमने डिक्लाइन किया तो इंपोर्ट्स डिक्लाइन भी बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल की वजह से हुई है कि आपने यहाँ पे एलसीज़ जो थी वो आज तक आपकी प्रॉपर्ली नहीं खुल रही हैं एलसीज़, जिसकी वजह से आपका जो इंडस्ट्रियल रॉ मटीरियल है वो नहीं आ रहा। तो अगर आपने इस तरीके से रोक के एलसीज़ आपने रोक के अपने इंपोर्ट्स अपनी कम कर दी तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? ओवरऑल इतनी सारी चीज़ें करने के बावजूद अगर आप देखें तो आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ा है। हालांकि इस वक्त अगर आपने इतनी इंपोर्ट्स रोक दी थी तो उसके बाद फिर आपके जो था फिस्कल डेफिसिट कम से कम वो नेगेटिव में बढ़ने के बजाय कम हो जाना चाहिए था। लेकिन आप ये देख लें कि सारे एफर्ट्स के बावजूद कोई इनकी जो पॉलिसी है वो कारामद साबित नहीं हुई और मुल्क में इंडस्ट्री की जो इस वक्त सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पर पहुँच गई है। साहब अगर हम देखें IMF के लिए सब कुछ कर लिया हमने, लेकिन अभी भी IMF में देखा जा रहा है कि ताख़ीर का सामना है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर। मज़ीद ताख़ीर होती तो आप रुपए पर कितना प्रेशर देख रहे हैं? रुपए पे यकीनन प्रेशर बिल्डअप हो सकता है और जो कि एक और बड़ा एक तूफ़ान खड़ा हो सकता है जिसकी वजह से, क्योंकि अब मज़ीद हमारी इकॉनमी के अंदर अब इसकी गुंजाइश नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जब रुपी डिप्रिशिएट करता है तो उसके बाद फ्यूल प्राइसेस के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है और तमाम आपकी चीज़ों के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ जाता है। तो यकीनन इसका प्रेशर बिल्डअप हो सकता है। जी, जैसे कि आपने सुना शदीद कंसर्न्स हैं कि जो माशी अदद शुमार है 10 महीनों के अच्छे नहीं आए। कोई भी एक सेक्टर देखा जाए वो कंसर्न शो कर रहा है। हुकूमत को अमली इक़दाम की तजवीज़ भी दी है, साथ ही कहा है कि रुपए की कदर में अब मज़ीद कमी नहीं। अशरफ खान अपडेट करने। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जनूबी में मुलजिम नईम भट्ट और दीगर के खिलाफ 24 लाख रुपए मालियत की डकैती के मुकदमे की समाअत हुई। नामजद मुलजमान अदालत में पेश। अदालत की जानिब से आज मुद्दई मुकदमा और नामजद गवाहान के खिलाफ नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए समाअत 16 जून तक मुलतवी कर दी गई है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शहरियार सिद्दीकी से। शहरियार, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, देखिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जनूबी की अदालत में मुलजिम नईम भट्ट और दीगर के खिलाफ 24 लाख रुपए मालियत की डकैती के मुकदमे पर आज अहम समाअत हुई है। नामजद मुलजमान आज अदालत में पेश हुए। मुलजमान के खिलाफ जो मुकदमा है वो अवैध वल्द सिकंदर अली की मुद्दत में जो है वो दर्ज किया गया था। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा थाना फूड बेसन में दर्ज किया गया था। इसके अलावा जो है वो अदालत की जानिब से आज मुद्दई मुकदमा और नामजद मुलजमान के खिलाफ नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। मुकदमे की समाअत 16 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। मुलजमान के वकील एडवोकेट सैयद सैफुल्लाह शाह की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुलजमान के खिलाफ ये जो मुकदमा है ये 3 साल कबल जो है वो दर्ज किया गया था। गुज़िश्ता 1 साल से जब से ये केस मेरे पास है, एडवोकेट सैयद सैफुल्लाह शाह की जानिब से बताया गया कि गुज़िश्ता 1 साल से जब से ये केस मेरे पास है, मुद्दई मुकदमा किसी भी मुकर्रर समाअत पर जो है वो कमरा अदालत में पेश नहीं हुए। जब उनकी जानिब से मुकदमा दर्ज करवाया गया है तो मुसलसल अदालत में गैर हाजिरी का क्या मतलब है, मुसलसल गैर हाजिर होकर अदालत का वक्त ज़ाया करने का जो है वो क्या मतलब है। पहले भी जो है वो मुद्दई मुकदमा की गैर हाजिरी के बायस उनके खिलाफ जो है वो काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा मुद्दई के वकील का ये भी बताया गया, मुद्दई के वकील का ये भी कहना था कि अदालती हुक्मनामे के बावजूद मुद्दई मुकदमा का रवैया जो है वो चेंज नहीं होता, उनका जो रवैया है वो तब्दील नहीं होता। मुद्दई मुकदमा बदस्तूर जो है वो कमरा अदालत में गैर हाजिर है, जिसके बाद अदालत की जानिब से सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए मुद्दई मुकदमा और गवाहान के खिलाफ आज जो है वो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और उनसे और अदालत मुद्दई मुकदमा और गवाहान को पाबंद किया गया है कि आइंदा समाअत पर जो है वो अदालत में अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए। इस मुकदमे की समाअत 16 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी। बहुत शुक्रिया शहरियार। पतंग की डोर फिरने से एक और शहरी की जान चली गई। दानिश अपने काम से घर वापस लौट रहा था कि पतंग की डोर फिरने से मौके पर जान बहक हो गया। हम आपको आगाह कर रहे हैं, अफसोसनाक खबर है, पतंग की डोर फिरने से एक और शहरी की जान चली गई। दानिश अपने घर से वापस लौट रहा था कि पतंग की डोर फिरने से मौके पर ही जान की बाजी हार गया। मज़ीद बात करेंगे शाहरुख शाह से। जी शाहरुख। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ बंस रोड नंबर 4 गली में और कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया
पतंग की डोर जो है वो फिरने से एक नौजवान जो है वो शख्स इंतकाल कर गया, जिसके घर पे जो है वो इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इनके घर पे जो है वो सफ़े मातम इस वक्त जारी है। नागहानी जो है वो मौत जो है वो सामने आई है, जिसमें पतंग की डोर जो है वो फिरने से एक शख्स मौके पे जो है वो इंतकाल कर गया। इस वक्त उनके फैमिली जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। जी मुझे बताइएगा कि दानिश 28 साल दानिश, क्या हुआ था इंसिडेंट, कहाँ से आ रहा था वापस? ये हैदरी से आ रहे थे और हैदरी से आते आते 10 नंबर की तरफ आए। जाते में पानी पिया सिर्फ हमारे वालदा के घर से, अपने ससुराल से, और वो बस गए कह के कि मैं घर जा रहा हूँ उन बच्चों को देखना। भाई ये नहीं पता था कि मौत होगी बारिश से, हमें नहीं पता था, छोटे बच्चों के साथ छोड़ के चले गए। क्या हालात क्या थे, कैसे थे, कहाँ से आ रहा था और एकदम से? इसके पैसे भी निकाल लिए, 2 लाख रुपए जेब में थे उसके, मैं वो भी निकाल लिए। गाड़ियों की खरीदारी करने गया था, वो तो गाड़ी खरीदता बेचता था, वो 2 लाख रुपए उसकी जेब से भी निकाल लिए और हमें नहीं पता और क्या था उसकी जेब में। उसके कितने बच्चे थे? और बच्चे भाई छोटे छोटे 4 हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है वो घर पे दानिश का जो घर है वहाँ पे उसके जो घर वाले हैं उनके जो घर में सफ़े मातम इस वक्त बिछा हुआ है और पतंग की डोर जो है वो फिरने से 28 साल दानिश जो है वो इंतकाल कर गया गुज़िश्ता रोज़, और आज उसकी जो है वो नमाज जनाजा जो है वो अदा की गई है, जबकि तदफीन जो है वो मेवा शाह में की गई है। और घर वालों का ये मुतालबा है कि जो पतंग की डोर और इस तरीके से इंसिडेंट है, कराची में भी पहले जो है ना वो गुज़िश्ता वाक़यात भी ऐसे रुनमा हो चुके हैं, तो इसके ऊपर कम्प्लीटली बैन लगाया जाए और इसके ऊपर कोई ऐसा इंसिडेंट जो है वो दोबारा ना हो, इनका मुतालबा ये है। और जो दानिश है उसकी नमाज जनाजा जो है वो करीबी मस्जिद में अदा की गई और उसका जो तदफीन है वो मेवा शाह में जो है वो इस वक्त कर दी गई। जिला कोरंगी के इलाके जमान टाउन की मरकजी शाहराह टूट फूट का शिकार हो गई है। जगह जगह पड़ने वाले गढ़ों से गुजरने वाले मुसाफिर और अहले इलाका अजियत में मुब्तला होने लगे हैं। बात करेंगे सैयद नुमान गुल, वहाँ पर मौजूद हैं। जी नुमान। जी बिल्कुल, शहर कराची की खस्ता हाल सड़कें शहरियों के लिए अब मसाइल खड़े कर रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जमान टाउन में, जहाँ की मरकज़ी शाहराह भी पिछले 3 सालों से तबाही के दहाने पर है। यहाँ पर तरक्याती कामों के नाम पर इस शाहराह को जो है वो खोदा गया था। यहाँ पर जो सेवरेज की लाइन है उसकी तनसीबकारी भी की गई, लेकिन उसके बाद मलबा ऐसे ही डालकर चले गए, रोड की मरम्मत नहीं की गई। मेरे साथ कुछ यहाँ पर कारोबार करने वाले लोग मौजूद हैं। सर मुझे बताइएगा ज़रा, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कस्टमर्स आते हैं ऐसी सड़क को देख कर? जी बहुत बड़ी मुश्किल होती है कि यहाँ पर कोई जो है ना तवज्जो ही नहीं दे रहा, अपने काम से काम रखे हुए। इतने टाइम हो गया लेकिन यहाँ पर अभी तक जो है ना रोड चलने का कोई प्रोग्राम। ठीक है सर, क्या कहें कितने सालों से ये सड़क टूटी हुई? तकरीबन 3-4 साल तो हो गए भाई ये सड़क टूटी हुई, और देखने के परेशानी होती है। अच्छा, यकीनी तौर पर तरक्याती काम या तो कराची में होते नहीं है या जो होते हैं उनको जो है मुकम्मल नहीं किया जाता। यहाँ पर भी जमान टाउन की इस मरकज़ी शाहराह पर भी जो सेवरेज की लाइन है उसकी तनसीबकारी तो कर दी गई, लेकिन इस शाहराह को जो है इसकी मरम्मत नहीं की। यहाँ पर रोड कारपेटिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से पिछले कई सालों से यहाँ के जो शहरी हैं वो मसाइल से दो चार हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महमूदाबाद TP2 में पानी की अदम फ्राहमी से इलाका मकीन परेशान है। कहते हैं कि पानी चोरी किया जा रहा है, मजबूरन टैंकर इस्तेमाल करते हैं। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, शहर कायद में पानी की अदम फराहमी जारी है और कई इलाकों में जो है पानी की किल्लत का मसला ताहाल बरकरार है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महमूदाबाद के इलाके TP2 में, जहाँ पर लाइनों में नलकों में पानी नहीं आता, जिसकी वजह से शहरी भी अजियत का शिकार हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते मुझे बताएगा कि पानी का मसला कब से है और कितने दिनों तक पानी नहीं आता। पानी का मसला जो है मई, जून, जुलाई और अगस्त तक 4 महीने तक पानी का मसला होता है। सब में ज़्यादा मुश्किलात तो जो है लेडीज़ को पेश आती है, जो कि घर में मौजूद होती है। हमारा तो मर्द हजरात हैं, हम तो बाहर चले जाते हैं, अपनी ड्यूटियों पे चले जाते हैं, ड्यूटी से आते हैं बाहर बैठ जाते हैं। पर इसका जो सब में मेन मैटर है ना, हमारी लेडीज़ को, ख़वातीन को, बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
ठीक है, देखा तो आपने इनका यही कहना था कि जो पानी का मसला है वो ताहाल बरकरार है, ख़ास कर जो मौसम गर्मा में जो है पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से घरों में जो ख़वातीन हैं उनको खाना भी तैयार करना होता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि पानी नहीं होता तो उसकी वजह से उन्हें जो है टैंकर से पानी डलवाना पड़ता है। टैंकर्स को पानी मिल रहा है तो फिर इनकी घरों की लाइनों में पानी क्यों नहीं आ रहा, ये सरापा सवाल भी है। जी, खेल के मैदान से खबर है, कोयटा में 34वीं नेशनल गेम्स में शिरकत के लिए स्क्वैश के नौजवान खिलाड़ियों की प्रैक्टिस इस वक्त जारी है। मजीद बताएंगे मोहम्मद हमाद। आज कोयटा में होने वाली 34वीं नेशनल गेम्स में शिरकत करने के लिए स्क्वैश के जो खिलाड़ी हैं वो इस वक्त ज़ोरों शोर से तैयारियां कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल कोचिंग सेंटर के जहांगीर खान स्क्वैश एकेडमी में, जहां पर ये बच्चे तैयारियां कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनके कोच हैं नसीम और नईम, दोनों बड़ी ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं। पहले हम मोहम्मद नसीम इनके कोच से बात कर लेंगे। नसीम भाई, मुझे बताइएगा, यहाँ से जो है 4 ख़वातीन और 4 लड़के जो कि नेशनल चैम्पियनशिप खेलने के लिए जा रहे हैं, सिंध की नुमाइंदगी करेंगे, तो कैसी तैयारियाँ करा रहे हैं? ये माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी हो रही है नेशनल गेम की, और जहांगीर खान स्क्वैश एकेडमी में इनका तो वैसे भी प्रॉपर कैंप चल रहा है इन बच्चों का, और अब नेशनल गेम आ गया, इसके बाद नेशनल इवेंट है। जैसे नेशनल गेम के फ़ौरन बाद ये नेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, और माशाल्लाह अदनान असद साहब हमें बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ एकेडमी में, और बच्चों की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो गई है जो हमारे पास, और बहुत अच्छी गेम हो रही है सर। देखें, बिल्कुल ये इनके कोच थे। अब दूसरे कोच की तरफ चलते हैं। दूसरे कोच हैं मोहम्मद नईम, जो कि भरपूर इनको बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं। नईम साहब, आप मुझे बताइएगा, बच्चों को किस तरह ट्रेन कराते हैं और कितना वक्त देते हैं इन बच्चों को? इन बच्चों को सुबह सवेरे जो होता है फिज़िकल होता है, उसके बाद टर्निंग लेंथें होती हैं, फिर गेम्स होती हैं, और अब ये नेशनल गेम के लिए काफ़ी प्रिपेयर्ड हैं। तो अब देखें कि क्या अच्छा खेलते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है। जी क्या, बिल्कुल ये दोनों कोच जो कि इन बच्चों पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों में काफ़ी जज्बा है, और इसी मेहनत और जज्बे से जो है जब ये नेशनल गेम में शिरकत करेंगे तो सिंध के लिए गोल्ड मेडल लाने के लिए तैयार होंगे। और इनका यही कहना है इन बच्चों का कि हम सिंध के लिए गोल्ड मेडल लाएंगे, ना सिर्फ सिंध के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए जो है बैरूनी मुल्क जाकर भी जो है ये टूर्नामेंट बड़े एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट गरबी में मुलजिम अहमद और इलाही बख्श के खिलाफ कत्ल के मुकदमे की समाअत हुई है। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा गुज़िश्ता 2 साल से ज़ेर समाअत है। अदालत का गवाहान की गैर मौजूदगी पर सख्त बरहमी का इजहार किया गया है। बात करेंगे शहरियार सदीकी से। शहरियार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट गरबी की अदालत में मुलजिम अहमद और इलाही बख्श के खिलाफ कत्ल के मुकदमे पर आज अहम समाअत हुई है। मुलजिमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा मोहम्मद अमीन की मुद्दत में दर्ज किया गया था। मुलजिमान के खिलाफ ये जो कत्ल का मुकदमा है ये गुलशन मेमार थाने की हदूद में जो है गुलशन मेमार थाने में दर्ज किया गया था। मुलजिम अहमद के खिलाफ अपने साथी के हमरा अपनी बहू को जो है वो कत्ल करने का इल्ज़ाम था। आज दौरान समाअत मुद्दई के वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुलजिम अहमद ने सोची समझी साजिश के तहत अपने साथी इलाही बख्श के साथ मिलकर अपनी बहू को जो है वो कत्ल किया। मुकदमा जो है वो इसके अलावा जो है वो मुद्दई के वकील का कहना था कि मुकदमा पहले जो है वो पुलिस की कोताही के बाइस इल्तिवा का शिकार हुआ, जिन्होंने मुलजिमान को गिरफ्तार करने में जो है वो काफ़ी ताख़ीर की। इसके अलावा नामजद मुलजिमान इसके अलावा जो है वो मुद्दई के वकील की जानिब से ये भी बताया गया कि मुलजिमान जो है वो जमानत हासिल करके आज़ाद घूम रहे हैं, जबकि मुद्दई मुकदमा मोहम्मद अमीन गुज़िश्ता 2 साल से जो है वो अपनी बहन के कत्ल के लिए जो है वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। शहरियार सदीकी अपडेट करते, बहुत शुक्रिया आपका। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची और सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत दूसरी शिफ्ट का इम्तहान शुरू हो गया है। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कैंपस गुलशन में बिजली की आंख मचोली जारी है। बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, सानवी तालीमी बोर्ड कराची की ज़ेर एहतमाम और सिंध टेक्निकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम सेकंड शिफ्ट का पर्चा जो है शुरू हो चुका है। गालिबन अगर टेक्निकल बोर्ड के हवाले से बात की जाए तो टेक्निकल बोर्ड का जो पर्चा है दोपहर 2 बजे शुरू हुआ है। पाक स्टडीज़ का 9वीं जमात का जो पाक स्टडीज़ का पर्चा है जो कि मुनक़िद हुआ 2 बजे, जबकि अगर सानवी तालीमी बोर्ड कराची की जानिब से अगर बात की जाए तो सानवी तालीमी बोर्ड कराची का आज दोपहर में जो है रियाजी का पर्चा मतलब कि मैथ्स का पर्चा जो है
हिस्सा दोम का इस वक्त जारी व सारी है। तहम टेक्निकल बोर्ड का जो पर्चा है वो 5 बजे के करीब जो है इख्तिताम को पहुँच जाएगा, जबकि सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत जो पर्चा है 5:30 बजे इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इस वक्त जिसमें इम्तहानी मराकज़ में मौजूद हूँ तो ये गुलशन का गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पर टेक्निकल बोर्ड का भी सेंटर पड़ा है। इसके अलावा सानवी तालीमी बोर्ड कराची का भी सेंटर पड़ा है और यहाँ पर बिजली की आंख मचोली जो है यकीनन जारी व सारी है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि सानवी तालीमी बोर्ड कराची की जानिब से जो नाजिम इम्तहानात हैं हबीबुल्लाह सुहाग साहब मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ के दौरे पर निकले। आज उन्होंने जो है बोर्ड ऑफिस से दूर के इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया, जैसे कि गुलशन हदीद और स्टील टाउन में जो इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं हबीबुल्लाह सुहाग ने वहाँ का दौरा किया है। इसके अलावा अगर टेक्निकल ज़ुबैर हमें अपडेट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ताहा सलीम की हिदायत पर कब्जा माफिया से गरीब आबाद की वसी अराजी वागुजार करवाई गई है। मजीद बात करेंगे रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, गरीबाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। शरीफाबाद का इलाका है जो कि लियारी एक्सप्रेसवे से मुत्तसिल है और इसके साथ साथ यहाँ से सर्कुलर रेलवे का ट्रैक भी गुजरता है। इस मकाम पर तजावीज़ात की भरमार थी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इंतज़ामिया गुज़िश्ता 1 साल से तजावीज़ात का ख़त्मा करके जो ज़मीन वागुजार कराई जा रही है वहाँ पे अवामी फलाही मंसूबे जो है वो जारी रखे हुए हैं। मेरे कैमरामैन अजलान छिपा आपको दिखाएंगे कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि गरीबाबाद के इस मकाम पे मियाँ वाँ की तर्ज पे अर्बन फॉरेस्ट की जा रहा है जिसमें बहुत सारे जो है वो माहौल दोस्त दरख्त जो है वो पौधों की शक्ल में लगाए जा रहे हैं, जिनकी आबियारी की जाएगी। और अर्बन फॉरेस्ट जो कि माहौलियाती आलूदगी के हवाले से इस वक्त इंतहाई ज़रूरी हो चुकी है, उस पर काम जारी है। मेरे साथ एक अफसर मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, नासिर खान, उनसे बात करते हैं। नासिर साहब फरमाइएगा, ये कब तक मंसूबा जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा और इसकी देखभाल के हवाले से क्या प्लानिंग है? देखिए, इसके लिए ये जितने भी इस टाइप की जगहें थी, इंक्रोचमेंट थी, बाहुकुम DC साहब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये आप देख लें हमने सारा ये इंक्रोचमेंट ख़त्म करवाई है यहाँ पर। और अब ये कि ये इस टाइप के ये पौधे वगैरह लगाए जा रहे हैं यहाँ पर और अनकरीब ये देखेंगे आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा और हरा भरा हो जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि तजावीज़ात का जब खात्मा हुआ तो उस वक्त भी कुछ जो है वो मज़ाहमत की चीज़ें सामने आई थी, इस वक्त काम हो रहा है, इस वक्त किसी किस्म की कोई मज़ाहमत तो नहीं है लैंड ग्रेबर्स की जानिब से? कहते हैं कि हुआ, पहले भी प्रॉब्लम आ रही है, बहरहाल ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, तो इंशाल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब रहेंगे। अच्छा, कब तक इस अर्बन फॉरेस्ट के इस मंसूबे को मुकम्मल कर लिया जाएगा और क्या आवाम को यहाँ पर एंट्रेंस की इजाज़त होगी? बिल्कुल होगी, ये आवाम की मफाद में ही सारे काम हो रहे हैं और अनकरीब जैसे ये कंप्लीट होता है ये आवाम के लिए सारी चीज़ें तमाम सहूलियात आवाम के लिए की जा रही हैं। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि माहौलियाती आलूदगी के बिगाड़ से अगर निमटना है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली को फ़रोग़ दिया जाए। इसी सिलसिले की कड़ी में यहाँ पर यह सारा काम। बहुत शुक्रिया रिजवान।